Dear students, today we are going to discuss the human eye. Question is, what is eye? Then we used to say, it is a wonderful gift of God. It is a wonderful gift of God by the help of which we are able to see this very colorful world. Right? यह एक भगवान के दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है मुझे, हम मनुष्यों को, जिसके चलते इस कलरफुल दुनिया को, इस रंग बिरंगी दुनिया को देख पाते हैं। जरा सा सोचिए उन लोगों के बारे में जिसे भगवान ने आंखें ना दी, जो अंधे हैं। उनके लिए क्या दिन क्या रात। इट मीन दैट इस मामले में हम लोग भाग्यशाली हैं that God has given us this very special gift, human eye. We are going to discuss this very thing. It is one of the most valuable and sensitive organ which gives us sense of sight. Due to this very organ, due to this very thing, we are able to see anything. We are able to learn by the help of this very eye. We are able to learn, able to read, able to write, able to drive, and able to observe this very nature by the help of our eye. It means that no doubt this very gift of God is precious for we people. See, this is your eye. This is the special gift of God to we people by the help of which we are able to see this very world. Now come over construction in working of eye. अगर ये हमें भगवान ने आय दी है तो यह जो है कैसे क्या चीज़ से बना हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है और यह काम कैसे करता है. How does it works? Come over its different parts. Its different parts are cornea, sclera, iris, pupil, aqueous humor, eye lens, ciliary muscles, vitreous humor, retina, rods and cones, and optic nerve. See this very eye, it is your eye. Our eye is near to a spherical in shape, करीब करीब स्फेयर के शेप में है. That's why it means that it is in the shape of ball. That's why it is also known as eyeball. Right? A spherical part is also known as eyeball. Right? Front part is bulge out. Front part is bulge out. आगे वाला पोर्शन जो है उभरा हुआ है. Right? This very front part which is bulged out, it is protected by a transparent layer. यह जो आगे उभरा हुआ पार्ट है, यह जो है ट्रांसपेरेंट है और हमारी आँखों को बचाता भी है. Means it acts as protective layer, and name of this very portion, bulged out portion, is cornea. Right? And our rest part of the eyeball, which is covered by white layer, that also protects our eye. यह भी जो है हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है. And name of this very white protective layer is a sclera. Right? इसको हम लोग sclera कहते हैं. And then after that, just behind cornea, see this one. It is your iris. यह आपका आइरिस है. एंड इट इज़ कलरफुल पार्ट ऑफ आवर आई. जो हम लोग अपना आँख देखते हैं तो उसमें जो पीले रंग का, नीले रंग का जो कलरफुल पार्ट गोल जैसा दिखाई पड़ता है, दैट वेरी पार्ट इज योर आइरिस. वही आपका आइरिस है. राइट? इट मीन दैट इट गिव्स अस कलर टू द आई. इसी के कलर के चलते हम लोग किसी को कहते हैं नीली आँखें वाले इंसान, और नहीं तो फिर भूरी आँखें वाले, और नहीं तो फिर पीली आँखें वाले.
राइट। मीन्स यह जो आइरिस का जो कलर है यह हमारी आई को कलर देता है, राइट। एंड एट द सेंटर ऑफ द आइरिस, एट द सेंटर ऑफ द आइरिस, आइरिस के ठीक एकदम बीचों बीच में देयर इज ब्लैक कलर्ड मेम्ब्रेन, एक काले कलर का एक मेम्ब्रेन है, नेम्ड प्यूपिल, उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल, राइट। आफ्टर प्यूपिल देयर इज अ लिक्विड, एक लिक्विड है। प्यूपिल के बाद जो ये ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं, प्यूपिल के बाद जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, दिस वेरी ब्लैंक स्पेस इज फिल्ड विद अ लिक्विड नोन एज एक्वस ह्यूमर, इसलिए को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, राइट। एंड आफ्टर एक्वस ह्यूमर देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस, देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ thin protein cells, and this very eye lens, means this very convex lens is connected to our eyeball by thin muscular fiber known as ciliary muscles, after ciliary muscles again there is liquid known as vitreous humor, and at the last of the eyeball there is a screen of the eye known as retina. Over this very screen image of anything forms, right. Over retina पर जो है, over retina there is presence of large number of light sensitive cells. Why light sensitive cells? क्योंकि यह जो सेल है लाइट के प्रेजेंस में ही एक्टिव होते हैं, दैट्स वाई दीज आर नोन एज लाइट सेंसिटिव सेल्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इन द शेप ऑफ रॉड्स, दैट्स वाई दे आर नोन एज रॉड्स, एंड सेकेंड वन इज इन शेप ऑफ कोन, दैट्स वाई दे आर नोन एज कोन्स। मीन्स इस तरीके के होंगे, कुछ जो होंगे रॉड के शेप में होंगे और कुछ जो होते हैं कोन के शेप में होते हैं, right. That's why these are known as rods and cones, and all these rods and cones are connected to a nerve. ये सारे के सारे rods and cones नर्व से कनेक्टेड होते हैं, और वो सारे नर्व उन सभी rods and cones से निकल करके इस पोजीशन से बाहर निकलते हैं, जहाँ से बाहर निकलते हैं दैट वेरी पोजीशन इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, और वह जो नर्व होता है दैट वेरी नर्व इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। ये सभी ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, जाकर के ब्रेन में मिलते हैं, राइट। इट मीन दैट वी कैन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी आवर आई आर कॉर्निया, स्कैलेरा, आइरिस, pupil, aqueous humor, eye lens, ciliary muscles, vitreous humor, retina, rods and cone, optic nerve, and blind spot. Question is this कि what are the functions of different parts? इनके सभी different parts का function क्या है, right? First come over cornea. This very cornea which is bulge out portion, first thing is it protects our eye. यह जो है प्रोटेक्टिव लेयर है, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव लेयर। वन मोर थिंग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट कॉर्निया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट कॉर्निया। कॉर्निया के पास ही जो है सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम अमाउंट रिफ्लेक्शन होता है कॉर्निया के पास ही हो जाता है, राइट। एंड बैक पोर्शन ऑफ आई बॉल इज कवर्ड बाय अगेन अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज वाइट इन कलर, एंड दैट वेरी वाइट कलर्ड मेम्ब्रेन इज नोन एज स्कैलेरा, SCALERA, राइट। नेक्स्ट, after pupil there is colorful part of our eye known as iris. This very iris
कंट्रोल्स दी साइज ऑफ द पीपल। यह जो बीच में छोटा सा ब्लैक कलर मेम्ब्रेन है जिसको आपने पीपल नाम दिया था, उसके साइज को कंट्रोल करता है। मीन्स आइरिस कंट्रोल्स दी साइज ऑफ पीपल के साइज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कम ओवर पीपल, यह जो बीच सेंटर में है पीपल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीपल? सिंपली वी यूज टू से, हमने यह पढ़ा है कि टू ऑब्जर्व एनीथिंग, किसी चीज़ को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों तक आनी चाहिए। तो जब हमारी आंखों से लाइट आती है आंखों से, तो सबसे पहले वह कॉर्निया पर इंसिडेंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ होता है, और फिर वह लाइट इसी पीपल के थ्रू जो है हमारे आई के अंदर इंटर करता है। मीन्स पीपल अलाउज लाइट टू इंटर इनटू आई, नॉट ओनली अलाउज, इट अलाउज करेक्ट अमाउंट ऑफ लाइट टू इंटर इनटू आई। अधिक लाइट का जरूरत है, कम लाइट का जरूरत है, लेट अस सपोज, मीन्स फर्स्ट इट अलाउज, वी कैन राइट it allows correct amount of light to enter into eye। आँख में कितनी लाइट की ज़रूरत है किसी चीज़ का इमेज बनने के लिए, उतना ही लाइट देता है। मीन्स यह आइरिस जो है, पीपल जो है का साइज बड़ा और छोटा होता है, और बड़ा छोटा मतलब कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ आइरिस। लेट अस सपोज योर ऑब्जेक्ट, जिसको आप देखना चाह रहे हैं, दैट इज इन डीम लाइट। अगर डीम लाइट में है तो उसको देखने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ रेज इंटर करेंगे मेरे आई में, तभी ना उसका क्लियर कट इमेज बनेगा। उसमें क्या होगा? पीपल का साइज बड़ा हो जाएगा, अधिक अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करने के लिए। और अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट में है, और अगर पीपल का साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लाइट चली आएंगी जो है, और बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा लाइट चली आएंगी कि वह फिगर जो बनेगा बहुत ज़्यादा चमक जाएगा, यू कैन से, राइट। दैट्स वाई व्हेन इट विल टेक दिस, अगर जो इस तरीके से होगा तो मुझे क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उस समय क्या होता है? पीपल का साइज छोटा हो जाता है, राइट। इट मीन दैट पीपल अलाउज करेक्ट अमाउंट ऑफ लाइट टू इंटर इनटू आई, और इसके साइज को कंट्रोल करता है। देन आइरिस कंट्रोल्स साइज ऑफ द पीपल, राइट। नेक्स्ट वन इज योर एक्वस ह्यूमर। आफ्टर पीपल देयर इज ए लिक्विड नोन एज एक्वस ह्यूमर। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर? देन you can say it also at aqueous humor against some amount of refraction takes place, right? After aqueous humor there is a lens known as eye lens. This very eye lens is convex in shape. यह जो आई लेंस होता है कन्वेक्स शेप में होता है, राइट। अगर यह कन्वेक्स लेंस है तो अगर यहाँ पर आई लेंस पड़ा हुआ है, अगर यहाँ हम लोग आई लेंस छोड़ देते तो यह नीचे गिर जाता, जाकर के आई बॉल के सरफेस को हिट करता है यहाँ। उसके लिए क्या होता है कि यह आई बॉल जो होता है चारों तरफ से पतले पतले जो हैं थिन लेयर से कनेक्टेड होते हैं, एंड नेम ऑफ दैट वेरी थिन लेयर इज सिलियरी मसल्स, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? Then we used to say this very convex lens, यहाँ पर convex lens के पास भी रिफ्लेक्शन होता है, and this very convex lens forms image over retina। रेटिना पर इमेज बनाता है, वह इमेज कैसा होता है? रियल होता है, इनवर्टेड होता है, एंड डिमिनिश्ड होता है, छोटा बनता है, राइट। समझ रहे हैं? एंड देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स? सिलियरी मसल्स का क्या फंक्शन है? तो अभी केवल आप ये समझिए, इट होल्ड्स आवर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ये अपने पोजीशन पर रखे रहता है। इसकी और फंक्शन है अभी सिलियरी मसल्स के। आफ्टर इज सिलियरी मसल्स अगेन देयर इज अ लिक्विड नोन एज विटरस ह्यूमर,
राइट। विट्रस ह्यूमरस का क्या फंक्शन है? तो विट्रस ह्यूमर के पास भी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। एंड आफ्टर दैट एट द एंड देयर इज रेटिना। जो आई बॉल है उसके सरफेस पर अंदर से एक स्क्रीन होता है ओवर विच इमेज फॉर्म्स, एंड दिस वेरी स्क्रीन इज नोन एज रेटिना। दिस वेरी स्क्रीन इज नोन एज रेटिना। राइट। क्या हम लोग देंगे? रेटिना मीन्स रेटिना का क्या कह देंगे? एक्ट्स एज अ स्क्रीन, इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन, राइट, ओवर विच इमेज फॉर्म्स। अब रेटिना पर इमेज बन गया। इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन कौन गैदर करता है? इंफॉर्मेशन लेकर के और ब्रेन को भेजता है दीज रॉड्स एंड कोन्स। ये रॉड्स एंड कोन्स, ये रॉड्स एंड कोन्स क्या है? दीज आर लाइट सेंसिटिव सेल्स। जब लाइट इस पर पड़ता है तो ये सेंसिटिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज लाइट सेंसिटिव सेल्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ जो होते हैं रॉड के शेप में होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज रॉड्स। और कुछ जो होते हैं कोन्स के शेप में होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज कोन्स। रॉड्स क्या काम करता है? इट गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है ये। और यह जो वर्क करता है बोथ ब्राइट एज वेल एज डिम लाइट, राइट। ब्राइट एंड डिम दोनों लाइट में यह वर्क करता है। एंड कोन्स, कोन्स जो है यह कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट बताता है कि ऑब्जेक्ट का क्या कलर है। एंड इट वर्क्स ओनली इन ब्राइट लाइट, वर्क्स ओनली इन ब्राइट लाइट, राइट। नेक्स्ट वन इज योर ऑप्टिक नर्व। तो ये जो रॉड्स एंड कॉन्स थे, इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर किया। अभी इनको मैसेज भेजना है ब्रेन को, तो इन सभी से एक नर्व निकलते हैं, और जाकर के वो ब्रेन में चला जाता है। और फिर ब्रेन क्या करता है? ब्रेन वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, जो डिमिनिश्ड इमेज था उसको इरेक्ट इमेज करता है, और जो इन्वर्टेड इमेज था उसको इरेक्ट इमेज करता है, एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट करके इंटरप्रेट करता है कि द ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ अस वह कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, राइट। इन दिस मैनर आवर आई वर्क्स, राइट। Once again see working cornea. It is front part. Bulge out part, यह उभरा हुआ है। protects our eye. It is protective layer, and maximum amount of refraction takes place at cornea. Second one is your iris. It is colorful part, right? It controls the size of the pupil. Third one is your pupil. It is black colored membrane. यह black color का होता है, present at the center of the iris, and through this very pupil light enters into eye. Through this very part means pupil, light enters into our eye. After that there is convex lens. This very convex lens is made up of, आप जो convex lens यूज करते हैं, अगर कोई चश्मा लगाता है तो उसका शीशा जो होता है either that is made up of fiber और glass, लेकिन भगवान जी ने जो हमारी आंखें दी है उसके अंदर जो convex lens दिया है that is made up of thin protein muscular cells, and it forms image over retina, right. Next one is your aqueous humor and vitreous humor. Through both liquids, refraction takes place. Right?
नेक्स्ट वन इज योर सिलियरी मसल्स। यह सिलियरी मसल्स क्या काम करता है? तो सबसे पहले तो कहेंगे इट होल्ड्स आवर लेंस, आई लेंस को होल्ड करता है, और साथ ही साथ यह आई लेंस के जो है साइज को बड़ा छोटा करके, मोटा पतला करके फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है जिससे कि इमेज ऑलवेज रेटिना पर ही बने। एंड वी यूज टू से इट कंट्रोल्स द कर्वेचर, इट कंट्रोल्स द कर्वेचर it controls the curvature and focal length of convex लेंस, या कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है, उसके कर्वेचर के, इसके साइज को चेंज करके, आई लेंस के साइज को चेंज करके, जिससे कि ऑलवेज इमेज मेरा रेटिना पर बने। मीन्स यह सिलियरी मसल जो है फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है, मीन्स यू कैन से कन्वर्जिंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है, जिससे कि इमेज ऑलवेज रेटिना पर बने। राइट। नेक्स्ट वन इज योर रेटिना। रेटिना इज नोन एज अ स्क्रीन ऑफ द आई वेयर इनवर्टेड रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्स। यह जो रेटिना है, रेटिना पर ही इमेज बनता है। Now come over rods and cones. These rods and cones are light sensitive cells. Why light sensitive cell? Because these become sensitive only in light. What is the function of rod? तो सबसे पहले तो यह जानिए कि रॉड आर इन द शेप ऑफ रॉड्स, रॉड के शेप में होते हैं। राइट, दैट्स वाई दे आर नोन एज रॉड्स। रॉड्स गिव शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे आगे में जो ऑब्जेक्ट है उसका कैसा शेप एंड साइज है उसके बारे में बताता है। और यह जो वर्क करता है बोथ इन डीम एज वेल एज ब्राइट लाइट, वर्क्स इन बोथ डीम एज वेल एज ब्राइट लाइट। वेयर एज कोन्स का क्या काम है? दीज गिव्स कलर टू द ऑब्जेक्ट, और कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कलर के बारे में बताता है। या कोन के शेप में होता है, ऑब्जेक्ट का कलर बताता है। और यह जो वर्क करता है ओनली इन ब्राइट लाइट, इट वर्क्स ओनली इन ब्राइट लाइट। नेक्स्ट इज योर ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है? देन वी कैन से दीज नर्व्स आर कनेक्टेड टू ब्रेन which means they act as path. These optic nerves act as path. इसी पाथ से होकर के रॉड्स एंड कोन्स जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया है वह भेजते हैं टू ब्रेन। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। जरा सा देखेंगे, वंस अगेन कम ओवर फिगर, सी दिस रीजन। यहां पर से जो है इन सभी रीजन पर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, सभी जगह होते हैं, लेकिन इस जगह पर रॉड्स एंड कोन्स नहीं होता है। यहीं से सारे ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, यहाँ रॉड्स एंड कोन्स नहीं होता है। इट मीन दैट अगर जो इस पोजीशन पर जो इमेज बनेगा उसके बारे में मेरे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाएगा, तो हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ का इमेज बना है, किस पोर्शन ऑब्जेक्ट के किस पोर्शन का इमेज बना है। मीन्स यह पोर्शन जो है ब्लाइंड जैसा बिहेव करता है, यहाँ हम लोग नहीं देख पाते हैं, मीन्स ब्लाइंड के जैसा बिहेव करता है। दैट्स वाई दिस वेरी रीजन इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। And we used to say a region over retina where there is absence of rods and cones is known as blind spot or blind region. Right? Blind spot. Region over retina where there is absence of rods and cones. Absence of rods and cones.
We don't get any information about image which forms at blind spot. ब्लाइंड स्पॉट के पास जो भी इमेज बनता है उसका इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन को नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए उस रीजन का नाम ही पड़ा है ब्लाइंड स्पॉट. Now come over persistence of vision. Question is this: what do you mean by persistence of vision? Then we used to say कि किसी भी, हमने अभी कहा है हमने अभी पढ़ा है, to see anything light from that very object should enter into your eye. किसी भी चीज़ को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों तक आनी चाहिए, राइट. अगर वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से हट जाएगी तो हम लोग कहते हैं कि हमको नहीं दिखाई पड़ता है. लेकिन रियली क्या होता है कि हम, अगर मेरे सामने ऑब्जेक्ट है, मैं उसको देख रहा हूँ, अगर मैंने हटा दिया लेकिन फिर भी उसका इमेज मेरी आंखों में कुछ समय तक बना रहता है, 1 सेकेंड के 16 पार्ट तक, 1 सेकेंड के 16 पार्ट तक उसका इमेज मेरा बना रहता है, जबकि हमने ऑब्जेक्ट अपने सामने से हटा दिया. मीन्स देयर विल बी कंटिन्यूटी ऑफ विजन. तो उसी को जो है हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं. एंड वी यूज टू राइट कंटिन्यूएंस ऑफ विजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ का लगातार देखते रहना बाय आवर आई इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ आई. हमने अपने आँख के आगे से ऑब्जेक्ट को हटा दिया है, फिर भी वह मुझे दिखाई पड़ता है. एंड दिस वेरी थिंग इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन. वंस अगेन कम continuance of vision of any object by our eye even after removal of original object from in front of our eye is known as persistence of vision. We used to say the image formed on the retina of eye does not fade away instantaneously. अगर हमने ऑब्जेक्ट को तुरंत हटाया और तुरंत उसका इमेज खत्म नहीं हो जाता है, तुरंत उसका इमेज मध्यम नहीं हो जाता है, राइट, डीम नहीं हो जाता है, बट इट्स इम्प्रेशन रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड. 1 सेकेंड के 16 पार्ट तक जो है वह रेटिना पर उसका इमेज रहता है, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद भी. दिस कंटिन्यूएंस ऑफ सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन. यही परसिस्टेंस ऑफ विजन कहलाता है, राइट. इट इज़ बिकॉज ऑफ, और इसका क्या फ़ायदा होता है, सी दैट थिंग. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस परसिस्टेंस ऑफ विजन. इसी परसिस्टेंस ऑफ विजन के चलते हमारे जो हम लोग जो है पिक्चर वगैरह देख पाते हैं, सिनेमा वगैरह देख पाते हैं, सीरियल वगैरह देख पाते हैं. वो कैसे, तो वो क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है अलग अलग पोजीशन का जो है फोटो हमारे आंखों के सामने से आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो वो लगता है कि कंटिन्यू वो पिक्चर चल रहा है. टेक एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज विराट कोहली जो है छक्का लगा रहा है, तो जैसे हम लोग जब कोई भी बैट्समैन छक्का लगाता है तो जैसे जैसे उसकी पोजीशन होती है उसके बैट की और उसके बॉडी की, वो वैसे वैसे फोटो हमारे आंखों के सामने से बढ़ाए जाते हैं धीरे धीरे स्पीड में, जो है 1/16 ऑफ सेकेंड के अंदर में एक पहला है, उसके बाद 1/16 के अंदर में ही दूसरा ला दिया गया. इस तरह से लगता है, और आगे हम पास कराया जाता है अलग अलग पोज का, केवल स्टिल पिक्चर पास कराया जाता है, तो हमको लगता है कि दैट इज मूविंग पिक्चर ड्यू टू दिस वेरी परसिस्टेंस ऑफ विजन. एंड वी यूज टू राइट इट इज बिकॉज ऑफ दिस परसिस्टेंस ऑफ विजन दैट वेयर स्टिल इमेजेज, जो एक सिंपल फोटो होता है वो वाला, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लश्ड ऑन द आई एट ए रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड. मतलब एक 1/16 सेकेंड के अंदर दूसरा आ जाए, मतलब 16 पर सेकेंड के रेट से पास कराया जाता है, तो वह जो हमारा आई जो है उसको परसीव करता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है, विराट कोहली छक्का लगा रहा है, राइट. नाउ कम ओवर पावर ऑफ एकोमोडेशन. Question it is कि what is power of accommodation? Then to know this very power of accommodation, see here, let us suppose it is your eyeball and it is your image, it is your lens. मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, रे यहाँ से ऐसे चला है, कन्वर्ज होकर के ऐसे इमेज बन रहा है,
इट मीन दैट अगर ये ग्लास का लेंस होता तो इसका थिकनेस फिक्स्ड होता, कितने एंगल से कन्वर्ज कर रहा है, कितने एंगल से कन्वर्ज कर रहा है वह फिक्स्ड होता। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता तो इससे जो रे चलता वह ऐसे चलता, अगर उतना ही एंगल से कन्वर्ज करता तो इमेज यहाँ रेटिना के आगे बन जाता। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो रे ऐसे चलता, तो रे ऐसे चलता और उतना ही एंगल से कन्वर्ज करता तो रेटिना के पीछे जाकर इमेज बनता। लेकिन इन रेटिना पर इमेज बनेगा तभी वह इमेज का इंप्रेशन मेरे ब्रेन में जाएगा, उसको देख पाएंगे। रेटिना के आगे भी बनेगा तब भी नहीं देख पाएंगे, पीछे बनेगा तब भी नहीं देख पाएंगे। बट यू टेल मी कि हम लोग यहाँ वाले भी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, यहाँ वाले भी, यहाँ वाले भी, यहाँ वाले भी, इसका मतलब सबका इमेज रेटिना पर बनता है, सबका इमेज रेटिना पर बनता है। तो वह कैसे बनता है कि जो है ये जो आई लेंस है इसका कन्वर्जिंग एबिलिटी, रे को कन्वर्ज करने का, कम और अधिक करने का, कम और अधिक करने का इसकी अपनी एबिलिटी है। इसकी अपनी एबिलिटी है, अपना जो है कन्वर्जिंग एबिलिटी को चेंज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। मीन्स कन्वर्जिंग एबिलिटी चेंज होगा, मीन्स फोकल लेंथ बढ़ सकता है, घट सकता है, इसका शेप एंड साइज बढ़ सकता है, घट सकता है। एंड ड्यू टू दिस वेरी थिंग वी आर एबल टू सी एनीथिंग क्लियरली, राइट। तो पावर ऑफ, योर टर्म इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के लिए दूसरा वर्ड होता है पावर ऑफ एडजस्टमेंट, मीन्स एडजस्ट करने का पावर। जो आई लेंस है अपने फोकल लेंथ को, अपने शेप एंड साइज को, अपने कन्वर्जिंग एबिलिटी को ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। एंड ड्यू टू विच image always forms over retina, it means that due to which we are able to see far objects as well as nearby objects with same clarity, and this ability is known as power of accommodation. Once again see here, a special ability possessed by our eye, a special ability possessed by our eye lens, by the help of which we are able to see far objects as well as nearby objects with same clarity। दूर वाले भी ऑब्जेक्ट को, नज़दीक वाले भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेम क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं। दिस वेरी एबिलिटी इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, राइट। यह कैसे हो पाता है? दिस वर्क इज परफॉर्म बाय आवर आई लेंस बाय चेंजिंग फोकल लेंथ, बाय चेंजिंग कर्वेचर, बाय चेंजिंग कन्वर्जिंग एबिलिटी, राइट। कन्वर्जिंग एबिलिटी को चेंज करके, या कह दीजिए कर्वेचर को चेंज करके, या कहिए फोकल लेंथ को चेंज करके आई लेंस यह काम कर लेता है। एंड ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विद सेम क्लैरिटी। नाउ कम ओवर कि ठीक है हम लोग दूर वाले भी ऑब्जेक्ट को देख लेंगे, हम लोग जो है दूर वाले भी ऑब्जेक्ट को देख लेंगे, पास वाले भी ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। तो जो पास वाले को देख पाएंगे, कहाँ तक वाले को देख पाएंगे? कहते हैं ना, अगर कोई बच्चा बहुत तेज है, अगर कोई बच्चा बहुत तेज है तो कितना तेज है? अगर वो 8 में पढ़ता है तो बहुत तेज है, 9th का क्वेश्चन बना लेगा, 10th का क्वेश्चन बना लेगा, 11th में फंस जाएगा। उसकी भी एक लिमिट है। अगर कोई बच्चा जो है कोई बच्चा जो है अगर गोरा है तो उसकी भी एक लिमिट है, वह होगा एकदम अंग्रेज जैसा होगा, ऐसा नहीं कि एकदम दूध की तरह वाइट होगा, राइट। समझ रहे हैं ना। कोई आदमी अगर लंबा है तो उसकी भी एक लिमिट है कि भाई 6 फीट 7 फीट, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक पोल की तरह लंबा हो जाएगा। इट मीन दैट इस दुनिया में हर एक चीज़ की एक लिमिट है। तो अगर मेरा आई एकदम नज़दीक से नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को भी देख लेता है बाय द हेल्प ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो उसकी भी एक लिमिट होगी कितना नज़दीक तक को देख पाएगा। तो जितना नज़दीक से नज़दीक को देख पाता है, मीन्स जितना नज़दीक से नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट का इमेज अपने रेटिना पर बना लेता है, दैट वेरी डिस्टेंस इज नोन एज नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, सबसे छोटा डिस्टेंस क्लियर दिखने का। और जो दूर से दूर वाले को देख पाएगा उसको हम लोग कहते हैं फार पॉइंट, right? Then see the definition. Least distance of distinct vision, which is also known as near point.
द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर आई विच कैन बी सीन बाय आवर आई क्लियरली, जो कि हमारे आंखों से क्लियरली दिखा जा सकता है, एकदम मिनिमम डिस्टेंस वाला, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज आल्सो नोन एज नियर पॉइंट, इसको हम लोग नियर पॉइंट भी कहते हैं। एंड वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग जो है 20 नज़दीक से नज़दीक 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो यह जो 25 सेंटीमीटर जो वैल्यू है दैट इज फॉर एन एडल्ट पर्सन, एक बड़े लोगों के लिए है। बच्चे का जो होता है, बच्चे और नज़दीक देख सकते हैं, बच्चे 10 to 12 सेंटीमीटर तक नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। फार पॉइंट, फार पॉइंट किसको कहेंगे, तो जितना दूर से दूर देख पाएंगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन बाय आवर आई क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। और दूर से दूर कितना वाले को देख पाएंगे, देन इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी। मीन्स हम लोग कहाँ से कहाँ तक देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक वाले ऑब्जेक्ट, कहीं भी प्लेस रहेगा ऑब्जेक्ट हम लोग देख लेंगे। और इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ विजन। द मिनिमम डिस्टेंस टू मैक्सिमम डिस्टेंस विच कैन बी सीन बाय आवर आई क्लियरली इज नोन एज रेंज ऑफ विजन। तो रेंज ऑफ विजन का क्या वैल्यू होगा, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, राइट। ओके माय डियर।